We were solving RTU question paper from year 2018, engineering mechanics. And only 2 years have passed since your new scheme has been implemented in the question paper. From 2017 onwards, since we are moving backwards, the latest paper was 2019 that we have already solved. And moving backwards, the next one is 2018, for which the new scheme was implemented. This was the first time when the new scheme was implemented in 2018. So if we move back to 2018 paper, you will see that you will be getting questions in a different format. It will be in a unit wise format. So anyway, this is the format that you can expect your paper to come this time. 5 questions, part A, 2 marks each, and 6 questions will be given in part number B, but you have to attempt any 4. So it's your choice. There will be a mix up of theoretical questions and numerical questions. For example, this question: prove that a lifting machine is reversible if its efficiency is greater than 50%. This is a direct derivation that everyone has to learn by heart, and it is given in lecture notes number 14 as given by me. So refer lecture notes number 14, which is very easy for you to access now because I have uploaded everything in a systematic manner in your classroom app. So you just open your classroom app, go to this one. I'll show you how to do that once again. Go to your classroom app, and instead of stream, which is the default tab that gets opened, go to classwork, and in classwork you have to go to lecture notes. There might be something called as material, and in material you can go to lecture notes, and all the lecture notes are given here in a systematic order. You just refer the lecture note number 14. For example, lecture 14, you go here, you can access everything from your phone itself. So this is the derivation. This small part is the derivation. Condition for irreversibility or self-locking of machine. So this much content simply proves that if the efficiency of a lifting machine is less than 50%, then it will become self-locking. And this is the proof for self-locking. So the question that has been asked here is prove that lifting machine is reversible. So all you have to do is show the same derivation and say that if efficiency is less than 50%, then it becomes self-locking. So it is implied that when efficiency is greater than or equal to 50%, then it becomes reversible. So that part you have to do on your own. If you simply leave the derivation here and say that the condition for irreversibility is less than 50%, there might be a small problem because the examiner might take advantage of this thing that you have been asked the condition for reversibility, not irreversibility. So all you have to do is just mention in a single line that since less than 50% means irreversibility, so greater than or equal to 50% must mean reversible. That's all. That's all you have to do. And then, yeah, that's done. And now let's go to the other question. Now we are at question number 4 of part B. It's a 10-mark question, but frankly, if you ask me, this question should have been given in the 15 marks section because this is a very lengthy one. Not difficult, but lengthy and time consuming. That's all. But anyway, RTU paper is RTU paper, and you can expect any surprises from here. So although this is a lengthy one for a 10-mark question, you have to do it accordingly. There is no choice for you. If you try to attempt it, obviously, you can obviously choose to not do this question and do some other question. For example, this question, question number 5. This is this question does not deserve more than 4 marks of weightage. This is a very small question. But once again,
It has been given in the 10 mark section. So if you attempt it and you know how to do question number 5, you might have to spend only 5 minutes in this question. But at the same time, if you attempt question number 4, you might end up consuming 20 to 25 minutes of your time in the paper. Obviously, that will depend on the speed of your calculations and the practice that you have put in. If you haven't put in a lot of practice, then it is going to consume even up to half an hour. This question is lengthy. So anyway, it's lengthy but not difficult. Let us try to do this, and you can easily expect questions like this. They will give you an L section, T section, I section, C section, any type of section they can give, and it's a composite section. So you will be asked to find the moment of inertia about some axis. Sometimes they will ask find the moment of inertia of the section about the axis passing through the bottom line. Sometimes they will ask passing through the left hand side here. And sometimes to make things even more difficult for you, like in this paper, they will ask you to determine the moment of inertia of the L section about its centroidal axis. Now, as soon as you see the word centroidal axis, then you can simply assume that your difficulties are going to increase, because before finding the moment of inertia, you have to find the centroid of the section too. Then that in itself is a separate numerical problem. So first you have to find the centroid of the L section, which is going to be somewhere around here. Obviously, when you find the centroid and moment of inertia and all, you have to first consider a point as the static point or the origin. And in case of L section, as I have told you earlier also, if you remember, the most convenient point to be selected as origin is the point of the L here. So selecting this as the origin, whose coordinates will be taken as 0 comma 0. Now you have to find the location of the centroid. After finding the location of the centroid, what is the question demanding you to do? Find the moment of inertia of the L section about its centroidal axis parallel to the legs. So once again, if you interpret the problem correctly, it is not only asking you to find the moment of inertia about one axis. There are two axes passing through the centroid, so thereby qualifying to be called as centroidal axis. One axis is the horizontal axis passing through the centroid. So this will be the centroidal XX axis. This is parallel to the bottom leg of L. And there is a vertical centroidal axis passing through the centroid YY, which is parallel to the vertical leg of your L section. So what you have to do is you have to find the moment of inertia IXX. Then you have to find the moment of inertia IYY and also find out the polar moment of inertia. What is polar moment of inertia? How many people are Sir, listening? IX plus IYY. Yes, polar moment of inertia is simply, I'll show you how polar moment of inertia goes. Polar moment of inertia is like this. If you have a plane section, let us take the L section itself like this. I am showing it in a isometric three-dimensional view. Okay, this is your centroid, let us say. So this is your centroidal YY axis. For this, you will find IYY. This is your centroidal X axis. For this axis, you will find your IXX, and perpendicular to the plane in which X and Y axis are lying and the L section itself is lying, you draw a vertical axis passing through the centroid like this, and you call it the ZZ axis. This IZZ is called as the polar moment of inertia. And by applying the theorem of perpendicular axis, which says that on a plane, if you take two perpendicular axes and about these two perpendicular axes, if you find the moment of inertia of any area, then the moment of inertia of the same area about an axis
perpendicular to the plane and passing through the same centroid or passing through the point of intersection of the previous two axes will be simply the sum of the two moments of inertia. So as you have already rightly said, all you have to do to calculate the polar moment of inertia is to add up these two moments of inertia. So as you can see, this problem involves calculations on three fronts, or it's a three-part calculation problem. The first part of the problem is to find the value of x bar, y bar. That means you have to find the centroid first. कि भाई ये है कहाँ पे? जब ये पता लगेगा तभी तो उससे एक्स एक्स और वाई वाई पास कराओगे. So first part, second part, third part, and the fourth part is simply an addition of these two. So we will not call that as a part. That is just the end result. Okay. So what I want you to do is, as a part of your examination practice, I'm going to let you do this whole problem on your own. I'm not going to solve it for you. I have the solution with me. So what I'll do is, I'll simply give you a small guidance to begin with, and then you guys solve this problem on your own right now. Okay. So what you have to do is, as soon as you get a composite section, for example, right now we have an L section with us. Moment of inertia problem or finding centroid problem, the first thing that you have to do is locate the origin. So for an L section, this point that I have selected is the most convenient location for origin. Although, to be precise, it is never a rule that you have to select this point always as the origin. It is your convenience and your philosophy. You can select any point as origin. You can select this point as origin. You can select this as origin, this as origin. So depending on the location of your origin, the coordinates of your x bar, y bar will change. For example, if I take this as origin, my coordinates of the origin, or sorry, of the centroid will be negative for y bar. But at the same time, if I select this point as the origin, then both the coordinates of x bar and y bar will be positive. So the numerical value of centroid will vary depending on the location of your origin. But once again, it's a serious suggestion from my part that you should not deviate from the standard norms when it comes to RTO exam, because I have already warned you that the people who are going to check your answer copies, there is always a slight chance that the teachers might be from some other subject expertise. That means there is a very good possibility that the teachers who are checking your question paper might not have taught engineering mechanics in their whole lifetime. समझ रहे हो? So that is always a risk. तो इसलिए एक्सपेरिमेंट कभी नहीं करना चाहिए आरटीयू में. जो बिल्कुल सीधा सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है जो आपको सिखा दिया गया है, डू नॉट डिविएट फ्रॉम दैट अननेसेसरीली. तो इसलिए एल सेक्शन का ये वाला पॉइंट ही बेहतर है ओरिजिन लेने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपने इसको ओरिजिन ले लिया सपोज, और आपका सेंट्रॉइड का वैल्यू आ गया एक्स बार इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड वाई बार इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर. ये माइनस साइन देखते ही कुछ एग्जामिनर, अब देखो उनको प्रैक्टिस तो है नहीं, उन्होंने इंजीनियरिंग, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छे टीचर नहीं है, लेकिन आरटीयू का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट यू नो हाउ टू बिवेयर ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन. आरटीयू के जो एग्जामिनर्स होते हैं उनको कॉपियां तब रिलीज की जाती हैं स्टूडेंट्स की जब वो आंसर्स लिख करके ले जाते हैं. तो ये क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है, ये वो अपने किसी कोलीग से बोलेंगे यार तुम मेरे लिए इसका सॉल्यूशन बना करके दे दो और मैं जाके कॉपियां चेक कर लूंगा. भाई इससे किसी का भी नुकसान नहीं होगा. वो अपने दोस्त कोलीग से, टीचर से जिसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आती है, उसने उसको सॉल्यूशन बना के दे दिया. अब जैसे मेरे से कोई सॉल्यूशन मांगता है, मैं तो इसको ओरिजिन ले लूंगा और इसको ओरिजिन मानते हुए मेरा जो सेंट्रोइड आएगा वो तो आएगा एक्स बार इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और वाई बार इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लेटेस्ट से. ठीक है. तो अब जो एग्जामिनर है वो मेरा आंसर लेके गया, उसको नहीं पता कि सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, उसने तो बस मेरा छापा हुआ आंसर देखा, एक्स बार वाई बार 2 और 4 आना चाहिए, लेकिन लड़के का क्या आया है, एक्स बार तो 2 आया, वाई बार -8 आया.
काट देगा और आपके -4 नंबर कर देगा। लेकिन आपने क्या गलत किया क्या आंसर कॉपी में? आपने कुछ भी गलत नहीं किया, यू हैव डन एवरीथिंग राइट। So this is a fair warning to everybody कि experimentation or deviation from the normal procedures should not be done when you are dealing with RT paper, क्योंकि ये बिल्कुल एक कड़वा सच है कि कई बार नहीं बहुत बार टीचर्स आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज के नहीं होते हैं। उनके पास में एक पर्चा होता है जिसमें आंसर छपा हुआ होता है और उस आंसर को देख करके ब्लाइंडली कॉपी चेक करते हैं। दे डू नॉट नो कि इसके ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स भी होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने। सो ऑलवेज बी अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा वी विल नॉट डिविएट फ्रॉम द नॉर्म, अपन इसका ओरिजिन यही लेंगे। और अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, चलो आप बताओ व्हाट वी हैव टू डू। सर एक्स बार वाई बार की लोकेशन निकालनी है। उसको कैसे निकालते हैं आगे बताओ। आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, मैं नहीं कर रहा, मैंने पहले बोल दिया क्या सर करूंगा। इसको 2 रेक्टेंगल में अपन पार्ट कर लेंगे। This is a problem of composite area. Now the next part of the proceedings has to be how to split this area. अब इसको split करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे काट दो, ठीक है, तो अपर रेक्टेंगल और लोअर रेक्टेंगल बन जाएगा। अदरवाइज you split it like this, and no matter how you split it your answer will be the same, क्योंकि आपने ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया है। तो इसको स्प्लिट कैसे कर रहे हो, उससे बीच की वैल्यूज चेंज होगी, एक्स बार वाई बार जो निकलेगा उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, एक स्ट्रेटजी कॉमन रख लेते हैं ताकि आप लोगों के इंटरमीडिएट स्टेप्स के आंसर्स भी मैच करें। तो आई एम सजेस्टिंग दैट यू स्प्लिट द एरियाज लाइक दिस, इस तरीके से स्प्लिट कर लो। ठीक है, नाउ लुक एट द डायमेंशन, दिस इज ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ठीक है, तो एक तो है कि या तो आप mm को SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो, और यू डोंट डू दैट, पूरा का पूरा काम mm में ही चलाओ, सारी की सारी वैल्यूज mm रेज टू पावर 4 सब mm में ही चलेगा। सो इट्स योर चॉइस। सो लेट अस वंस अगेन चूज कि भाई दी हुई वैल्यूज को मैं अननेसेसरी टेम्पर ना करके ऐसे ही चला लेता हूँ। ठीक है, यहां से यहां तक 85 है, थिकनेस ऑफ द एंटायर एल सेक्शन इज 10, the length of the entire vertical leg is 125. So tell me the dimensions according to my splitting. ये पूरा 125 है। अच्छा, अब एक और चीज करनी है, क्योंकि आपने इसको दो एरियाज में स्प्लिट कर लिया है, सो यू हैव टू ईयरमार्क द एरिया स्पेसिफिकली इन योर आंसर कॉपी। तो मैं इसको एरिया नंबर 1 और इसको एरिया नंबर 2 ईयरमार्क कर रहा हूँ। एंड नाउ टेल मी व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एरिया नंबर 1। मेरे को ये वर्टिकल लेंथ चाहिए और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए। सर वर्टिकल लेंथ है 115, 125 माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि 115। ठीक है, और ये तो 10 ही रहेगा, यस सर। this remains 10. What are the dimensions of the lower rectangle? सर 75 हो जाएगा और इधर 10। ध्यान से देखो, सर 85 कंटिन्यू 85 और 10 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। This will remain 85 and this obviously remains 10. तो पहला काम अपन ने कर लिया, स्प्लिटिंग ऑफ द कंपोजिट एरिया इनटू टू डिफरेंट एरियाज। अब अपन को क्या करना है, अब अपन एक्स बार और वाई बार निकालने की तैयारी पे आ जाते हैं। एक्स बार वाई बार की एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला को याद रखना, इट्स बेनिफिशियल ऑलवेज। सो सिंस देयर आर टू एरियाज, देयर इज A1 and A2, टेल मी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एक्स बार। x1 a1 plus x2 Sir, a2 A1 upon x1 plus A1 A2 x2 upon A1 plus A2. ओके, A1 x1 प्लस A2 x2 x2 होल डिवाइडेड बाय A1 plus A2 total area. उसी तरीके से फॉर्मूला बना के रख देता हूं y बार का भी, इट विल बी A1 y1 प्लस A2 y2 होल डिवाइडेड बाय A1 plus A2. Now tell me what do x1 x2 y1 y2 denote? आपने फॉर्मूला तो बता दिया, अब ये बताओ x1 क्या है। चल पहले सर मेरे को बताओ। हाँ सर x1 फर्स्ट जो एरिया है उसकी सेंट्रोइड की डिस्टेंस है ओरिजिन से। Yes, sir.
थोड़ा सा और इसको करेक्ट कर देता हूं, x1 इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ फर्स्ट एरिया फ्रॉम योर सेलेक्टेड ओरिजिन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एरिया का ओरिजिन सॉरी सेंट्रॉइड और सेकंड एरिया के सेंट्रॉइड को पहले लोकेट करना पड़ेगा और उसकी कोऑर्डिनेट्स पता करके रखनी पड़ेगी। दैट विल कंप्राइज ऑफ x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो अब आप मेरे को ये सारी चीजें आपको डिटेल आंसर कॉपी में नहीं लिखनी है, आप तो ये दो फॉर्मूले लिख दो और उसके बाद सिर्फ मेरे को ये बता दो, वी आर प्रोसीडिंग जस्ट लाइक आई वांट यू टू राइट इन योर आंसर कॉपीज। ठीक है, तो पहले फिगर बनाया, स्प्लिट किया, एरिया के नंबर लिखे 1 2 और दोनों एरियाज के डायमेंशंस मार्क कर दिए, एक्स बार और वाई बार का फॉर्मूला लिख दिया। अब सीधे सीधे मेरे को वैल्यूज बताते चलो, a1 a2 तो आप निकाल ही लोगे। a1 बता दो कितना है, व्हाट इज a1? 1150 1150 mm स्क्वायर। ठीक है, ऑलवेज राइट द यूनिट ऑल्सो। a2 कितना है? 850 50 mm square 850 850 अब बताओ x1 कितना है? 5 X, हम्म, sir 5 meter सर 5 5 meter सर 5 मिलीमीटर 5 millimeter, very good. What is x2? x2 का मतलब है 42.5 42.5। yes it is 42.5 millimeter. Okay, now we come to y1। y1 बताओ। सर 62.5 नो, नहीं 5 सर 67.5 67.5 कैसे निकाला भाई? पहले तो देखो क्या करना पड़ेगा, 115 का हाफ करो तो एक्चुअल एरिया का सेंट्रॉइड का लोकेशन मिल जाएगा, लेकिन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कितना होगा वो पता करने के लिए आपको इसके हाफ के साथ में ये 10 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, दैट विल गिव यू द एक्चुअल लोकेशन ऑफ y1। समझ में आ गया ना? yes sir सो द करेक्ट आंसर शुड बी, इसका कैलकुलेशन इस तरीके से होगा, 115 का तो हाफ करो और उसमें 10 ऐड करो, so that will यस be 67.5 millimeter. This is your correct value of y1. Now what is y2? सर 5 mm वो सीधे सीधे 5 है, 10 का हाफ, so y2 is 5 mm. Now you have all the information with you. अब इसमें आप अपना फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करें सब लोग, x बार कितना है और y बार कितना है, कैलकुलेट करके बताता चलो। सर x1 20.9375 x ओके, बार इसको राउंड ऑफ कर लूं 20.94, यस सर y बार सर 40.94 करेक्ट। We have completed the first part of your question.
सेंट्रॉइड फाइंड करने की बात अपन ने कर ली। तो अब 20.94 comma 40.94, after the implementation of this step you should ideally write your answer like this. इतना सा लिख के रख दो, ठीक है। And now once the centroid has been found, now the next task is to find the moment of inertia of the entire area about an axis passing through this centroid point, horizontal as well as vertical, ठीक है। अब अपन वापस से एक फिगर बनाएंगे। अब देखो ये जो कंस्ट्रक्शन मैं कर रहा हूं, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अब इसमें खूब सारी मैं टर्मिनोलॉजीज ऐड करूंगा। अगर ये टर्मिनोलॉजीज आप यूज नहीं करते हैं, देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू माइट गेट कंफ्यूज्ड अ लॉट। अब देखो क्या कर रहा हूं, पहले एल सेक्शन वापस से बना लो। क्वेश्चन आसान है ये, लेकिन इसमें कंफ्यूजन और सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। दिस वाज योर अर्लियर ओरिजिन and now you have already found the centroid which comes out somewhere around here, यहाँ पर है आपका centroid, ठीक है। Now my first aim is to find the moment of inertia of the entire section about the x axis. तो सेंट्रॉइड की लोकेशन मुझे पता लग गई है, तो मैं उसमें से x एक्सिस को पास करवा चुका हूं, और इस x एक्सिस की इसके ऊपर कितने डिस्टेंस है। चलो अभी तो फिलहाल अपन ये करते हैं कि you have to find the moment of inertia of this L section about the x axis, ठीक है। अब इससे पहले कि अपन इस काम पे चलें, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से करेंगे इसको। यस, यू हैव टू यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मैं आपको एक रेक्टेंगल देता हूं और बोलता हूं कि ये मेरी एक एक्सिस है, और बोला कि इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए रेक्टेंगल का आई एक्सिस। सो द स्ट्रेटजी ऑफ डूइंग दिस, जैसा अभी अक्षित ने बताया, इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों लगती है। आपको रेक्टेंगल का स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद है, वो क्या है, BD3/12। लेकिन ये BD3/12 फॉर्मूला कब लगता है, व्हेन यू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगल अबाउट इट्स ओन सेंट्रोइडल एक्सिस, जिसको कि मैं जी नाम दे देता हूं। और ये जो BD3/12 है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, और उसमें भी ये ध्यान रखना है कि कौन से साइड का क्यूब कर रहे हो। क्यूब उस साइड का होता है जिसको कि करती है, तो इसको डी मानू और इसको बी मानू, तब जाकर के आई जी जो है या आई जी जो है, दैट इज BD3/12। लेकिन मेरे से पूछा गया है आई एक्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस जी एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में एक डिस्टेंस पता करूंगा h, and once I find this distance x, I simply say or claim that using the parallel axis theorem, my ixx comes out to be the standard IG plus the entire area of rectangle multiplied by simply the distance, perpendicular distance between the parallel axis, AH square. ये स्ट्रैटेजी अपन अब यूज करेंगे अपने ऊपर वाले कंपोजिट सेक्शन के लिए। और अपन को ये पता है कि पूरे एल सेक्शन का कोई स्टैंडर्ड सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला तो है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, वापस से अपने स्प्लिट एरियाज को ले लेंगे और बोलेंगे कि अब मैं अपने एरिया नंबर 1 को एक रेक्टेंगल मान रहा हूं और एरिया नंबर 2 को एक रेक्टेंगल मान रहा हूं। एरिया नंबर 1 का सेंट्रोइड कुछ यहां पर है, एरिया नंबर 2 का सेंट्रोइड कुछ यहां पर है। तो अब अगला टास्क क्या हो गया, चूंकि आपको पता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगनी है, सो यू ड्रॉ a horizontal axis parallel to the x axis through the centroid one. अब इसका एक नाम दे रहा हूं मैं GX1। और अगर आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है तो ये x भी आप मत यूज करो, क्योंकि अपन को GY भी बनाना है आगे जाके, इसीलिए मैंने इसमें x डाल दिया था। बट इफ यू आर ट्रीटिंग द प्रॉब्लम वन एट ए टाइम,
तो आप इसमें ये x भी मत यूज करो वरना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। यू सिंपली राइट इट एज G1, लेकिन G1 तो लिखना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर एक और सेंट्रोइडल एक्सिस बनने जा रही है, इसको क्या कहोगे? इसीलिए इसको मैंने G1 किया, अब इसको G2 कह दो। तो देखो इस तरह की इंटेलिजेंट टर्मिनोलॉजी यूज करने से आपको बिल्कुल सिस्टमैटिकली मिस्टेक्स की गुंजाइश कम होती चली जाएगी। सो नाउ आई हैव ड्रॉन टू पैरेलल एक्सिस। पहला वाला तो है फर्स्ट एरिया के लिए, दूसरा वाला है सेकेंड एरिया के लिए। नाउ माय स्ट्रेटजी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ the entire L section about the x axis is simply the moment of inertia of area number 1 about xx plus the moment of inertia of area number 2 about xx। देखो कैसे टर्मिनोलॉजी अपने आप बनते जा रही है, जैसे आपकी सोच वैसी टर्मिनोलॉजी। तो किताब भी ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन अपन को पता नहीं होता है तो अपन को लगता है कि पता नहीं कहां कहां से ये सफिक्स इन्होंने बना लिए, कैसे कर लिए। बट the suffixes and the terminologies that you use in your calculations are simply a projection of what you are thinking in your mind। देखा आपने, मैं जैसे बोलता जा रहा हूं वैसे ही मेरी टर्मिनोलॉजी में लिखता चला जा रहा हूं। अब बात सही है कि नहीं है? मेरे को अब मैं यहां पर कौन सा थ्योरम यूज कर रहा हूं? मैंने बोला कि मेरे पास एक एक्सिस है, एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है, और मेरे पास एक रेक्टेंगुलर एरिया यहां पर है, एक रेक्टेंगुलर एरिया यहां पर है, और एक रेक्टेंगुलर एरिया यहां पर है। तीन रेक्टेंगुलर एरियाज मैंने ले ली, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3। अब मैंने बोला कि इन तीनों का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट बताओ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थ्योरम सिंपली ये कहता है, इफ देयर आर मल्टीपल एरियाज and one axis, you simply take the moment of inertia of individual areas and simply add them up, that's all। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा कभी भी कोई केस बनता है जिसमें मल्टीपल एरियाज आते हैं और एक एक्सिस होती है, तो मैं एरिया नंबर 1 का एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, फिर एरिया नंबर 2 का एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, और फिर उसके बाद एरिया नंबर 3 का एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट इंडिविजुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सिंपली ऐड कर दिया जाता है, और कुछ नहीं होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज द सम ऑफ इंडिविजुअल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। तो ये थ्योरम यूज करते हुए या फिर ये लॉजिक यूज करते हुए आई कैन से दैट इन माय कंपोजिट सेक्शन आई हैव टू एरियाज, बोथ ऑफ देम आर रेक्टेंगल्स, देयर इज वन एक्सिस एक्स एक्स एक्सिस। तो मैं फर्स्ट एरिया का एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकंड एरिया का एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअली निकालूंगा और उनको ऐड कर दूंगा। दिस इज माय स्ट्रेटजी। एंड नाउ वी कम टू द पॉइंट वेयर वी एक्चुअली यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अब मैं ये कहूंगा कि मैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट एरिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस निकालने जा रहा हूं। हाउ डू आई डू दैट? ये देखो, पहला एरिया है ये, इसकी खुद की सेंट्रोइडल एक्सिस है G1, G1 और एक्स एक्स एक्सिस है ये। अब आपको क्या चाहिए? ये चाहिए कि नहीं चाहिए? व्हाट इज दिस H? और लेट अस कॉल दिस एज H1। सर 46.56। ये कैसे आया? सर जो उसकी डिस्टेंस थी ना सेंट्रोइड की, वो माइनस कर दी रेक्टेंगल के सेंट्रोइड की डिस्टेंस में से। ओके, देखते हैं कि आपने जो वैल्यू बोली है वो आती है क्या। ये डिस्टेंस कितनी है भाई, ये बताओ मुझे। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? 67.5। ये है आपका 67.5, दैट इज करेक्ट। और उसके बाद मेरे को बताओ ये डिस्टेंस कितनी है। 20.94। ये आपने निकाला था 20.94, ठीक है। दिस वन इज 20.94। So this distance or H1 will be 67.5 minus 20.94. That is correct. And that comes out as 46.56। एक सेकेंड, Yes, sir, 46.56. एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है।
67। अब देखो एक गड़बड़ कर दिया आपने अक्षित, ये वैल्यू जरा रिव्यू करो। सर ये हाँ ये एक्स डिस्टेंस की होगी, ये मैंने वाई डिस्टेंस पे ले ली है। हाँ, आपको ये डिस्टेंस चाहिए ना, ये वाली, ये y डिस्टेंस है ये। यू हैव टू डिस्टेंस है। टेक द y डिस्टेंस। आपने x डिस्टेंस ले ली, कितना है ये बताओ। 40.94। दिस इज 40 पॉइंट। ठीक है, सो सर अभी नाउ 26.56 आ जाएगा। हाँ, 26.56। अब 67.5 minus 40.94, so eventually the value of your h1 is कितना है? 26.56। अब आते हैं अपन अपने फॉर्मूले पे। अपने को पता है I1xx निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। so I am saying that I1xx is equal to moment of inertia of first area about G1 axis। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं, बी प्लस एरिया ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल मल्टीप्लाइड बाय h1 स्क्वायर, ये होगा मेरा I1xx। ठीक है, चलो अब इसकी वैल्यू पता करके बताओ कितनी है। और एक एक इंडिविजुअल वैल्यू मत पता करो, ऐसे ही कर लो। अब सिंपली इसी तरीके से अप्लाई द लॉजिक टू द सेकंड पार्ट आल्सो। सेकंड एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड एरिया अबाउट G2 एक्सिस प्लस A2 इनटू, अब इसमें कैसा रहेगा, h कौन सी डिस्टेंस है आपकी, h2 ये डिस्टेंस है आपकी, दिस इज योर h2 डिस्टेंस। तो अब ये सारी कैलकुलेशन खुद ही करो, h2 पता करो, A2 into h2 square, and eventually directly give me the value of Ixx, जो कि इन हो दोनों गई। का। और फिर A1 कितना था अपने पास में, 1150, और H कितना है, 6.56। सर ये 35.94 है क्या H2? x2 आपका x2 42.5 है। x2 आपने निकाला था, ये देखो, जो ये भी आया सारी वैल्यूज एक बार लिख के रख लो कहीं पे, फिर उसके बाद फिगर को देखो। है ना। 81124 8.64। सर हम्म, सर आई एक्सेस काफी बड़ा सारा आ रहा है। बिल्कुल बड़ा आएगा क्योंकि आपने mm में लिया है, कोई दिक्कत सर नहीं है। आप 8415623.64 आ रहा है। नो, गलत निकाला आपने फिर। मैं यहाँ पे Ixx की फाइनल वैल्यू मैंने जो कैलकुलेट की है वो लिखता हूँ, 3183658.87। इसकी यूनिट क्या है जरा बता सकता है क्या कोई, आई की यूनिट क्या होती है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। mm की सर पावर 4, मिलीमीटर की पावर 4। करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट यूनिट रेज टू पावर 4 होती है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट कितनी होती है, अगर ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना होकर के मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता तो उसकी यूनिट क्या होती।
किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर Yes, स्क्वायर। sir, kilogram meter square. हाँ, यूनिट ध्यान रखनी है और सारे आंसर्स में यूनिट जरूर लिखनी है। कैलकुलेशन करके जरा बताएं किसी का भी ये आंसर मैच हो रहा है क्या? सर इसमें H2 की वैल्यू क्या आएगी? x2 x2 is 42.5। नो सर H2 h2 अच्छा, यस सर। h2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, ये देखो। वापस से मैं ये वाली डिस्टेंस लूंगा पहले तो। ये देखो, एक बार मैं आपको थोड़ा और करेक्ट करता हूँ, काफी क्लस्टर्ड हो गया है। फर्स्ट आई विल गेट दिस डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि h2 क्या है, मैं इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस करना चाहूंगा, राइट? यस सर। तो h2 शुड बी इक्वल टू 40.94 माइनस, ये डिस्टेंस कितनी है? 5। 5। ये आएगा h2 आपका, तो दैट इज 35.94। यस सर। सर मैंने जो भी आंसर बताया था ना वो I1XX का बताया था। अच्छा, इस I1XX का अकेले का है वो? हाँ, इसलिए रॉन्ग था सर वो, आपको इसलिए लगा ऐसा। कोई बात नहीं, तो आप सेकंड भी निकालो और फिर ऐड करके फाइनल बताओ IXX। हाँ सर। हेलो। हाँ, आया आंसर? हेलो। हाँ बोलो बेटा, आंसर मैच किया कि नहीं किया? यस सर, आया सेम। सेम आ गया ना? यस सर। अब आगे देखो, those who have not finished the calculations, I will request them to stop their calculations and once again pay attention to the screen now, क्योंकि मैं आगे का बताने जा रहा हूं। अब अपन ने एक और पार्ट कंप्लीट कर लिया है, IXX निकाल लिया है। रिमेंबर टू राइट द यूनिट आल्सो।
अब आई वाई वाई निकालने के लिए अपन को ये पूरी एक्सरसाइज वापस से रिपीट करनी पड़ेगी. So what we will do is, you redraw this L section. ये फिगर्स बनाना भी जरूरी है. प्लीज रिमेंबर, ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज आपने यूज की है, H1 H2 1 G1 G2, ये सारी चीजें तभी वैलिड है जब ये फिगर भी आपने बना रखा हो. Now see, the origin is here, your centroid is still the same, but now you draw the vertical YY axis. अब ये centroidal axis हो गई आपकी. Mark this as YY. Once again, you have two areas with their own individual centroids. And let us say, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ. This is the centroid of the second area, let us say. And now, your axis have to be drawn parallel to the main centroidal axis like this. अब ये जो एक्सिस आपने एरिया नंबर 1 के लिए बनाई है, you mark this as G1 and G1. And similarly, another axis passing through the centroid, G2, G2, सेकेंड वाले. समझ में आया ना ऐसे क्यों बनाया अपन ने? वाई वाई एक्सिस जब सेंट्रोइडल वाली लेंगे तो जो दो इंडिविजुअल सेंट्रोइडल एक्सिस आपकी एरियाज की आएगी वो वाई के पैरेलल लेनी है. ठीक है. So now this distance becomes your H1 and this distance becomes your H2. अब ये पूरा गेम आपको अपने आप सॉल्व करना है. Once again you start with the entire proceedings from the beginning. आप ये बोलोगे मेरे पूरे L section की moment of inertia about YY can be obtained as the sum of two individual moments of inertia by taking moment of inertia of first area about YY and adding it with the moment of inertia of the second area about YY. And once again claiming that the moment of inertia of the first area about YY can be obtained through parallel axis theorem, and that will be equal to moment of inertia of first area about my new G1 axis plus area of the first area multiplied by H1 square. And similarly, moment of inertia of the second area about YY axis is once again obtainable through parallel axis theorem, and that will be equal to moment of inertia of second area about its own centroidal axis G2 plus area of the second area multiplied by H2 square. ये पूरी कैलकुलेशन आप वापस से रिपीट करेंगे जैसा अभी आपने फर्स्ट एरिया के लिए किया था. I will simply give you the answer of my own calculations. If you do your calculations correctly, the area moment of inertia of the entire L section about YY axis should come out as equal to 120,865.87 millimeter raised to power 4. This is the answer to your second part of the question. क्वेश्चन जरा वापस से देखें क्या पूछा था इन्होंने. Find moment of inertia of L section about its centroidal axis parallel to the legs. That means you have to find I about axis parallel to both the legs. तो ये वाली जो axis थी IYY, it is parallel to vertical leg, and this axis XX is parallel to the bottom leg.
तो इन दोनों के अबाउट निकालना है और फिर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना है। तो ये सारी चीजें देखते हुए अपन ने आई एक्स एक्स निकाल लिया, आई वाई वाई निकाल लिया, and then finally your IZZ or the polar moment of inertia by applying perpendicular axis theorem is Ixx plus Iyy, और उसका जो फाइनल आंसर आएगा that should be 4392317.74 mm raised to power 4. दिस इज द आंसर। इन दोनों वैल्यूज को एक बार नोट कर लो और आज के आज ही अभी सारी कॉपी किताब लेके बैठे हो। मैं आप क्लास अभी एंड कर रहा हूं। वी आर नॉट गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम क्योंकि मेरे को अभी कॉलेज जाना है। सो यू नोट इट डाउन एंड देन ट्राई टू फाइंड वेदर यू गेट द सेम आंसर और नॉट। तो ये आपको क्या लगता है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है या 15 का क्वेश्चन बनता है? ये सर 15 का। हाँ, लेकिन 15 का। हाँ, तो एक बार अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को जब हाथ से सॉल्व करते हैं तो ही अपन को पता लगता है। एग्जाम में आपको डिसीजन मेकिंग में भी आसानी रहेगी कि यार ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि आराम से देख लो आपने पूरे 1 घंटे की क्लास खत्म हो गई इस क्वेश्चन में। वो तो मैं समझा भी रहा था, सारी चीजें अलग से चल रही थी। आप लेकिन इंडिविजुअली भी करोगे तो यू कैन इजिली से कि जो आप लोगों में जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी 20 मिनट से कम तो नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। आई थिंक सो। यस सर। तो एनीवे ये क्वेश्चन ऐसे ही डिसाइड करना, टाइम है तो करो, ध्यान से करना है, मिस्टेक्स की बहुत सारी गुंजाइश है। हाँ, बट सर अगर ये तो एल सेक्शन था सर, इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अगर टी सेक्शन आ जाए तो कंपैरेटिवली इजी रहेगा ना। टी सेक्शन में भी 2 एरियाज आते हैं, लेकिन उसमें यह है कि उसमें एक सेक्शन के टी सेक्शन में अगर आप उसके बॉटम किसको ओरिजिन लेते हो उस हिसाब से आपका एक्स बार वाई बार वगैरह जो है उसमें कुछ एक वैल्यू 0 हो जाती है ना? ये सर एक्स बार 0 हो जाता है सर, क्योंकि जो भी सेंट्रोइड है सर वो वाई एक्सिस पे ही लाए होगा सर, इस वजह से। हाँ, तो टी सेक्शन में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। यू आर राइट, बट नेवरदलेस द प्रॉब्लम इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि इसमें मिस्टेक की गुंजाइश है। कहां पर एक्स बार ले लिया, ये मिस्टेक नहीं हुई थी अभी अपन से कि इसमें आपने वर्टिकल लेग लेने की बजाय एक्स बार की डिस्टेंस ले ली थी, x1 की डिस्टेंस ले ली थी, है ना? तो एक मिस्टेक भी हो जाए तो पूरा क्वेश्चन गलत है। और जैसा मैंने आपको कहा, जो एग्जामिनर है वो कई बार सिर्फ ये देखता है कि फाइनल आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम ही नहीं है उनके पास। उनको तो 20-20 रुपए कमाने हर कॉपी के, ये कमाने के लिए जाते हैं टीचर्स। कोई भी यहाँ पे ज्ञान और धर्म के लिए नहीं जाता वहां पे। एवरीबडी हैज टू अर्न मनी। आप भी इंजीनियरिंग किस लिए कर रहे हो? सो दैट यू गेट अ जॉब एंड अर्न मनी। तो आप गलत भी नहीं ठहरा सकते किसी टीचर को। तो आपके जो टीचर्स चेक करेंगे वो ये चेक करेंगे आई एक्स एक्स ये आया कि नहीं आया, आई वाई वाई ये आया कि नहीं आया, और आई जेड जेड ये आया कि नहीं आया। नहीं आया तो सीधे 2-3 नंबर कितने भी उड़ा देते हैं वो। इट्स अप टू देम, दे कैन टेक एनी नंबर ऑफ मार्क्स अवे फ्रॉम योर आंसर। लेकिन छोटी सी मिस्टेक होगी, you might not even deserve that much of deduction, लेकिन ऐसा होता है एग्जाम। So make an informed decision which question you want to attempt, which you do not want to attempt, क्योंकि अब आपको पता है कि किसमें कितना टाइम लगता है। ठीक है, आपने नोट कर लिया आंसर्स? ये दोनों वैल्यूज नोट कर ली? यस Yes, सर। sir. So we will stop the lecture today. ये कौन है? अनिरुद्ध शेखावत अपनी क्लास में है क्या भाई? नहीं है ना? सर है। अनिरुद्ध शेखावत अपनी क्लास में थोड़ी है यार। आई डोंट नो। सर अनिरुद्ध सिंह शेखावत अपनी क्लास में ही है सर, रोल नंबर 31। अच्छा, चलो कोई बात नहीं।